Now we shall try to understand learning as per the cognitivist school of thought. Rather, we can say cognitivist approach of learning. And as we told in terms of the behaviorist school of thought, it is a parallel school, cognitivist. And in order to understand cognitivist approach of learning, we shall be discussing two aspects. Rather, in two groups we shall try to understand the cognitivist approach. The first approach is Gestalt psychology, which is also very much associated with learning, in which three brilliant German psychologists come, the founder Wertheimer and another Kafka and Kohler. So far as the second aspect, second approach of cognitivist approach is concerned, that is information processing. In this category, though the founder, we cannot say founder, but the information processing model has been developed by Atkinson and Shiffrin. So these two, besides these two names, we shall talk some other names which is very common to the students of education. So Atkinson and Shiffrin developed information processing model, but it is Piaget, Brunner and Tolman who is more important from cognitivist approach of learning. So contribution of Piaget, Brunner and Tolman, and so far as Tolman is concerned, he is also being considered as the latter behaviorist. लेकिन बाद में उन्होंने थ्योरी, फील्ड थ्योरी वगैरह जो हम लोग को पढ़ना भी है उस पर बात की थी. Learning is due to insight, where perception and learning experiences matter. मतलब होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है इनसाइट लर्निंग, और ये कहता है कि किसी भी इंसाइट के फॉर्मेशन में लर्निंग एक्सपीरियंस जरूरी है और तभी वो परसेप्शन डेवलप होगा. और उसमें हम लोगों ने, आप यदि विस्तार से देखना चाहें तो यूट्यूब पे एक लेक्चर ऑलरेडी है जो इनसाइट लर्निंग और गेस्टाल्ट लर्निंग अप्रोच थ्योरी के नाम से है, जिसमें सुल्तान नाम के चिंपांजी पे एक्सपेरिमेंट हुआ और देखा कि इंसाइट के थ्रू बाय लुकिंग इनटू द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एज ए होल, द इंसाइट इज बीइंग फॉर्म्ड एंड वी लर्न थ्रू इंसाइट. जैसे जो भी कोई समस्या का हम समाधान करते हैं तो जब होलिस्टिक व्यू किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके देखते हैं तब समस्या का समाधान होता है. सो इनसाइट एंड द बेसिस ऑफ इनसाइट इज परसेप्शन एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. Perception and learning experiences are key elements in learning. We do not learn through trial and error. Insight learning theory जो अभी हम लोगों ने बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात की, वो उसको नहीं मानता है, कहता है कि ट्रायल एंड एरर से हम लोग नहीं सीखते हैं. ह्यूमन बीइंग आर मोर इंटेलिजेंट पीपुल सो दे लर्न बाय इनसाइट. आगे कहता है कि ट्रायल एंड एरर मे बी इनिशियल स्टेज ऑफ द इनसाइट लर्निंग, but this process does not continue for long. So we learn through insight, and insight is being formed due to perception, which is possible only if we are looking a problematic situation as a whole. So whole is whole, whole is not the addition of all its part. So holistic view is essential for perception, which is necessary for learning in terms of insight. Cognitivism considers people learn by perceiving.
comprehending and conceptualizing. This is important. Cognitivism considers people learn by perceiving, comprehending, rather understanding, and conceptualizing. There are certain laws of Gestalt or insight learning theory. So, in order to understand the learning as per insight, we must understand certain laws of perception like pregnance, similarity, proximity, continuity, closure, configuration, figure and ground, and these related laws of perception influence learning through perception. So far as information processing is concerned, we shall peep into this slide later, but let us understand a situation. हम कैसे सीखते हैं? हम बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते हैं, मतलब संज्ञान में नहीं लेते। तो लर्निंग की प्रक्रिया वहां से शुरू होती है जब हम संज्ञान में तथ्यों को लेते हैं। जो नहीं लेते हैं वो बात ही खत्म हो गई, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं होता है। अब मान लीजिए कि हम परसीव करके, हम उसको रिसीव करके अपनी इंस्टेंट मेमोरी, उसको टेक्निकल नाम हम बाद में देंगे, इंस्टेंट मेमोरी में रखते हैं। वहां से वो हमारे शॉर्ट मेमोरी में जाता है, और चूंकि वो एक ज्ञान का हिस्सा है तो हमारे पूर्व के ज्ञान से वो एमलगेट करके एक नया स्वरूप प्राप्त करता है। लेकिन वहां भी समस्या आती है कि हमारे ज्ञान के इतने ग्रुप्स बने, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 5 ग्रुप, 10 ग्रुप, 20 ग्रुप। अब ये किस ग्रुप के साथ जाके, यदि इसको कोई एक ग्रुप मिल जाएगा तो उसमें जाके पहले एकोमोडेट करेगा और फिर स्थायित्व तो प्राप्त करेगा। लेकिन यदि किसी ग्रुप में नहीं मिलता है तो फिर एक नया ग्रुप फॉर्म करेगा। इसीलिए कई बार आप देखेंगे अपने जीवन में, यदि आप बीएड जैसे प्रोग्राम में डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो लर्निंग की थ्योरी आपको टीचर एक ही ढंग से पढ़ाता है, लेकिन आपका केमिस्ट्री का, आपका मैथमेटिक्स का, आपका सोशल साइंस का, आपका लैंग्वेज का जो बैकग्राउंड होता है, जो आपका पूर्व का ज्ञान होता है, उससे वो एमलगेट करता है। इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग, इट्स ए कंप्यूटर मॉडल यू कैन से। सो प्रोसेस करके अस्थायित्व तो बनाता ही है, आपके पूर्व ज्ञान से मिलके एक दूसरा रूप बनाता है, एंड इट इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। इसीलिए जब कोई ज्ञान कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो एज पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हर में एक ही तरह की बॉडी केमिस्ट्री होगी, ऐसा नहीं है। तो ये तो हमने लेमैन की तरह आपको समझाने का प्रयास किया कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। वी रिसीव ए इंफॉर्मेशन, एज सुन एज वी रिसीव ओनली देन द प्रोसेस मूव्स ऑन, अदरवाइज तो देख के भी नहीं देखा तो गया ही, संज्ञान में नहीं आया गया। फिर शॉर्ट मेमोरी, पूर्व के ज्ञान से मिला, एक स्थायित्व तो प्राप्त किया और तब आपके ज्ञान का हिस्सा बना। सो बाय दिस वे यू विल बी able to understand the information processing and how learning takes place as per information processing. So individual has sensory memory, नाम ले लिया टेक्निकल, short memory and long memory. So in information processing, these 3 memories and the transfer of your knowledge, the information which you have received through these memories is important. So what are these 3 memories? Sensory memory, short term memory and long term memory. अब देखिए कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है। The sensory memory
receives information and the received information is organized, stored and accessed in the short term memory. मतलब रिसीव करके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख दिया, लेमन की तरह समझ लें। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी का स्टार्ट होता है रोल। वो क्या करता है? द लॉन्ग टर्म मेमोरी अलाउज टू हैपन द मेंटल प्रोसेस, मतलब एमलगेशन, मेंटल प्रोसेस एमलगेशन की इजाजत कौन दे रहा है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो द लॉन्ग टर्म मेमोरी allows to happen the mental process by which the information is integrated with previously stored information in short term memory। मतलब आपका ज्ञान का हिस्सा है, ये सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट मेमोरी में आके स्टे किया, अब उसको इजाजत मिल गई लॉन्ग टर्म मेमोरी से कि जो पहले का ज्ञान है उससे एमलगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, और तब ज्ञान जाकर अस्थायित्व की स्थिति प्राप्त करता है। सो वन वेरी ब्रिलियंट नेम दैट इज पियाजे। पियाजे थिंक्स दैट लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच न्यू इंफॉर्मेशन इज शेप्ड टू फिट विथ द लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज is itself modified to accommodate the new one। हमने कहा ना कि कई क्या रूप लेगा, that will decide later। लेकिन पुराना ज्ञान, नया ज्ञान, पुराने नए का एमलगेशन, फिर नया स्वरूप। सो दिस इज द टाइप of information that goes through sensory memory, short term memory, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और तब आपका ज्ञान भी धीरे धीरे पुराना होता चला जाता है, मतलब अस्थायित्व होता चला जाता है। पियाजे, his cognitive process of adaptation includes schemata, assimilation, accommodation and equilibration। ये जो कुछ कंसेप्ट है स्कीमेटा का, एसिमुलेशन का, एकोमोडेशन का, इक्विलिब्रेशन का, इस पे हम लोग विस्तार से कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल में इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम डिफाइन कर रहे थे तो आपने देखा कि पियाजे इंडिविजुअल कॉग्निटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है। ये जो अप्रोच है, दिस इज द बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। वहां हम फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में इन सारे कंसेप्ट्स को विस्तार में और इनके रिलेशनशिप पे बात करेंगे। सो एट दिस जंक्चर वी आर एंडिंग दिस कॉग्निटिविस्ट अप्रोच बाय सेइंग सम contribution, key contribution of this theory, insight, and insight through its different law of perception, problem solving. Insight provide basis to solve the problem. So discovery approach and memory retention, और memory बहुत सारा क्षय भी हो जाता है। So memory, discovery, problem solving and insight, and through insight and information processing, all the related concepts are the key contribution of this cognitive school of thought. So cognitivist approach can be understood by understanding Gestalt approach, Gestalt psychology, insight learning theory and information processing. So this is all about cognitivist school and learning in the light of cognitivist school. Thank you.